Welcome once again to all of you dear students in the today's topic. The today's topic is three questions. Three question is a short story is taken from 7th class English textbook. The questions is all about a king who want to know the answer of three questions. He thought that if he know the answer of three questions, then he would never fail in his life. The three questions are: what was the right time to begin everything? What was the right time to begin everything? Question number 2: who were the right people to listen and whom to avoid? Question number 3: what was the most important thing he to do? So he proclaimed that one who gives the right answer shall be rewarded. One who gives the right answer shall be rewarded. Many learned men attempted to answer the king's question, but they all came up with different answers. The king decided that he need to ask these questions to a wise hermit living in a nearby village. The hermit lived in the wood and would only see common people. The king disgusted himself and then went on to solution to his answers. When the king approached the hermit, he was digging the ground in front of his hut. The king asked his questions, but the hermit went on digging. The king offered to dig for him for a while. After digging for some time, the king asked his questions. Before the hermit could answer, a man emerged from the wood. He was bleeding a terrible stomach wound. So the king and the hermit washed the wound and bandaged it till the blood ceased. The king stayed at night in hermit's hut. Next morning, the wounded man was doing better and was gazing instantly at the king. He confesses to the king that he knew who the king was, and that the king had executed his brother and seized his property. He had come to kill the king, but King God wounded him. The king forgave him and made peace with his enemy and promised to restore the property to the wounded man. Wounded man. The king asked the hermit again for his question, and the hermit responded that he had just had his questions answered. Hermit says that the king had pitied his weakness, and had dug those beds for him. So the most important time when the king was pitied his weakness and had dug those beds for him. So the most important time when the king was digging the beds, and he was the most important man. The most important time when king was attending to the wounded man, and he was important man at that time. He was the most important man at that time. तो इस तरह से ये एक शॉर्ट स्टोरी है एक किंग के मुतालिक। वो एक दफ़ा ख्याल करता है कि अगर उसे 3 सवालों के जवाब मिल जाएं
तो वो ज़िंदगी में कभी भी नाकाम नहीं होगा। तो पहला सवाल उसका होता है कि हर एक चीज़ के शुरू करने का सही वक्त क्या है, कौन से सही लोग हैं जिन्हें सुना जाए और किन्हें नज़रअंदाज किया जाए, और तीसरा सवाल होता है कि करने के लिए बेहतरीन चीज़ क्या है। तो बादशाह ने ये ऐलान कर दिया कि जो मुझे सही जवाब देगा वो इनाम का हकदार होगा। तो इस ऐलान के बाद बहुत सारे लोगों ने बादशाह के सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन इन सब के मुख्तलिफ जवाब थे। सही जवाब देने की गर्ज से पहले सवाल के जवाब में कुछ ने कहा, हर हरकत सही वक्त पर जानने के लिए पहले से ही किसी को मुकर्रर कर देना चाहिए जो दिन, महीने और साल की फ़हरिस्त मरतब करे। हर कोई सख्ती से इस पर अमल पैरा हो। कुछ ने कहा हर एक चीज़ अपने मौजू वक्त पर होती है, तो कुछ ने कहा कि ये मुमकिन नहीं कि हम पहले से ही तय कर दें कि सही वक्त किसी भी चीज़ के करने के लिए क्या है। बादशाह ने ये तय कर लिया कि वो गांव के अंदर ही एक हिरमत के पास जाएगा, एक गोशा नशीन के पास जाएगा। वो बहुत ही अक्लमंद है, वो मेरे सवालों के जवाब देगा और आम लोगों को ही देखता है वो। इस तरह बादशाह ने सादा लिबास पहना, अपने मुहाफ़िज़ों को साथ लिया और फिर कुछ पीछे ही रहने दिया, खुद हिरमत के पास चला गया। ये हिरमत गोशा नशीन अपने झोंपड़े के सामने ज़मीन खोद रहा था। बादशाह ने पहुंचते ही उससे सवाल किए, बादशाह ने जवाब नहीं दिया, वो खोदता रहा। अचानक इतने में एक आदमी जंगल से नमूदार हुआ, उसके पेट में गहरा ज़ख्म आया हुआ था। तो दोनों हिरमत, गोशा नशीन और बादशाह उस ज़ख्मी आदमी की ज़ख्म को धोने लगे और मलहम पट्टी करने लगे जब तक कि उसकी ज़ख्म ठीक हो जाए। तो फिर बादशाह हिरमत के घर ही ठहरता है, उसी के झोंपड़े में रात को। सुबह के वक़्त ज़ख्मी आदमी की हालत में कुछ बेहतरी आती है, तो वो टिकटिकी बांध लेता है बादशाह की तरफ और कहता है, मैं बादशाह को जानता हूँ कि मैं इसको कत्ल करने आया था। अचानक इसके आदमियों ने, मुहाफ़िज़ों ने मुझे रास्ते में ज़ख्मी कर दिया कि इस बादशाह ने मेरे भाई को मारकर उसकी प्रॉपर्टी ज़ब्त कर लिया है। तो इस तरह बादशाह उससे दुश्मन से दोस्त बना लेता है और उससे माहिदा कर लेता है, उससे वादा करता है कि मैं तेरी प्रॉपर्टी तुझे वागज़ार कर दूंगा। तो इसके बाद बादशाह फिर हिरमत से, गोशा नशीन से अपने सवालों के जवाब पूछता है। तो हिरमत, गोशा नशीन उससे कहता है कि तुझे अपने सवालों के जवाब मिल गए। यानी बादशाह को हिरमत पर तरस आया और इसने किदार लेकर खोदना शुरू कर दिया। तो बेहतरीन वक़्त वो था जब बादशाह खोद रहा था। नंबर 2, बेहतरीन आदमी हर वक़्त जिसके पास बादशाह था। बेहतरीन आदमी हिरमत, गोशा नशीन जिसके पास बादशाह था। बेहतरीन वक्त वो था जब बादशाह ज़ख्मी आदमी के पास था और वही बेहतरीन आदमी भी था। तो इस तरह इस स्टोरी के अंदर
जो मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो हैं मैजिशियन। मैजिशियन कहते हैं जादूगर को, यानी ए पर्सन हु प्रैक्टिस मैजिक, जादूगर। उसके बाद है जैसे काउंसलर। काउंसलर कहते हैं काउंसिल का मेंबर, काउंसिल का मेंबर, ए मेंबर ऑफ ए काउंसिल। अफेयर्स होते हैं ए मामलात। थिंग्स टू बी डन आर अटेंडेड टू। स्पेड कहते हैं किदाल को, ए टूल फॉर डिगिंग टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लैट रेक्टेंगुलर स्टील ब्लेड। स्ट्रेच चौड़ा करना, बढ़ाना। टू ड्रा आउट और एक्सटेंड। वॉन्डेड जख्मी यानी सेवरली इंजुर्ड। रिवेंज, रिवेंज कहते हैं बदला लेने को। टू एक्ट ऑफ रिटेलिएटिंग फॉर रॉन्ग्स।